Good morning, students. Today's we start measurement of national income. ठीक है, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ, ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਨਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਐਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੋ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੁੱਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਨਿਊ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਿਆ, 10,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, 10,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈंने ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 8,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹ 8,000 ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੋ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ 18,000 ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 10,000 ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ, 8,000 ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਨਕਮ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਨਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗੀ।
ठीक है। एज अ रिवार्ड ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विस इन द गिवन ईयर। नैशनल इनकम का एस्टीमेट 1 साल ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ, ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਕੌਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੈ, CSO। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੈ, CSO, ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ। ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਿਲਰ, ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਟ। ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਟ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਉਹ ਵੀਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਫਲੋਰ। ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਆਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰ ਹੈ, ਬੇਕਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਬਿਸਕਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਕੇਕ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੇਕ ਆਪਾਂ ਬੇਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੇ ਉਹਨੇ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਤੇ ਆਟੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੇਕ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵੀਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਊਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ, ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 500, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, 500, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, 500। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀਟ ਖਰੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਟਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀਟ ਖਰੀਦੀ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੂਗਾ, 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक मिलर दे लई इंटरमीडिएट कंजम्पशन की है, कच्चा माल की है, आटा। आटा उन्हें किन्ने दा खरीदिया, 500 का, वेचा किन्ने दा, 700 का। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया कच्चा माल। मिलर दे लई फ्लोर की है, वीट की है, कच्चा माल है। उन्हें कनक खरीदी
कनक किन्ने दी खरीदी 500 दी, क्योंकि किसान ने फार्मर ने सेल प्राइस किन्नी रखी सी 500 दी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 दी होगी। हुण उहने उहदा आटा बना के मिलर ने किन्ने दा विच बेचता उहनूं 700 रुपए दा। उहने किन्नी वैल्यू ऐड करती 700 माइनस 500, किन्नी वैल्यू ऐड करती उहने 200 रुपए की वैल्यू एडड आ गई ना। किन्नी वैल्यू ऐड की उहने 200 रुपए ऐड करता, 700 का खरीदिया, 500 का खरीदिया, 700 का बेचता, 200 रुपया उन्हें आपदा खर्चा विच ऐड करता, मशीन चक्की चलाई जां उनदी रेंट का हो गया, आपदी मेहनत जो भी उन्हें 200 रुपया ऐड करता, 700 दे विच बेचता। हुण गां आ गया बेकर। बेकर नूं जदों आटा चाहिदा, बेकर ने की सी केक बनाना सी, केक बनाउण दे लई उन्हें मिलर तो आटा खरीदिया, किन्ने दा खरीदिया 700 रुपए का खरीदिया, 700 रुपया सेल प्राइस हो गई इहदी, 700 का खरीदिया ते सपोज उन्हें इहनूं बेचता 1000 रुपए दे विच। बिस्कुट की कीमत उन्हें लगाती 1000 रुपया, उन्हें किन्नी वैल्यू ऐड करती 1000 माइनस 700 300 रुपया, उन्हें किन्नी वैल्यू ऐड की है 700 रुपया, 700 रुपया ऐड करती ना। हुण देखो जेकर आपां सारा कुछ हुण देखियो 700 हो गया, टोटल करिए इनका सारिਆਂ ਦਾ कि वैल्यू सेल प्राइस फार्मर की किन्नी सी 500, इनकी किन्नी सी सेल ऑफ प्राइस किन्नी सी 700, ये किन्नी होगी 1000, टोटल किन्ना बन गया ये 2200, ये किन्ना बन गया 1200, ये किन्ना हो गया 1000, 1000 बन गया ना। 500 300 200 700 700 3 सॉरी 700 3 प्लस 300 1000 रुपया हो गया। ठीक है, ये हुण देखो हुण कहण दा तत्पर की है कि जेकर आपां वैल्यू एडड मैथड ना लगाइए, सिंपल आपां देखिए कि डबल काउंटिंग भी हो रही है, जे आपां इनू देखिए आपां इनू देख लिए कि किन्ने रुपए की कमाई हो रही है इकोनॉमी दे विच, नैशनल इनकम दे विच आपां ये ऐड कर दी 2200 रुपया, ये गलत हो जाएगा ना। क्यों क्यों क्योंकि 500 रुपया इनदे विच भी वीट की प्राइस ऐड होगी, 500 रुपया इनदे विच भी ऐड हो गया, ये 500 रुपया इनदे विच भी ऐड हो गया ना। 700 रुपये जो बनया 500 रुपया आप इनू भी नैशनल इनकम के ऐड करता, बाद में 700 रुपया ये भी नैशनल इनकम के ऐड करता, 1200 रुपया ऐड हो गया। जो कि आप वीट नू अलग तो ऐड कर चुके हैं, ये 700 रुपये तो 500 प्लस 200 ही बनया सी ना। 700 किवें बनया सीगा 500 प्लस 200, 500 आटे का 200 दूजा, पर जो आप ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं 200 500 रुपया, तो फिर इनदे विच भी जे आप ऐड करांगे तो नैशनल इनकम दे विच वीट का मुल 2 बारी ऐड हो जाऊगा। फिर एवं 1000 रुपया जे आप 1000 रुपया भी ऐड कर लें तो की होएगा 1000 रुपये दे विच 500 रुपया वीट का 3 बारी ऐड हो जाएगा, तो फ्लोर की प्राइस 2 बारी ऐड हो जाएगी, तो नैशनल इनकम तो अपनी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इस तरह तो आप सिर्फ एक चीज़ में एक बारी ऐड ही करना है, किसी भी चीज़ की प्राइस आप एक बारी ऐड करनी है, जिवें मैं तुहानूं मोबाइल की एग्जाम्पल लैके दसी सी। तो इस तरह हुण देखो इहदे विच हुण आ 1000 रुपया, ये 1000 रुपया ऐड होगा क्योंकि इहदे विच हरेक चीज़ का मुल एक बारी ऐड होया। 500 रुपया की होया वीट का मुल, 200 रुपया मशीनां वगैरह का खर्चा आ गया सारा, 300 रुपया जो बेकिंग बनाने खर्चा आया सी 1000 रुपया, जाने कि जे आप 2200 दे विचों माइनस करिए 1200 रुपया तो कितना आ गया 1000 रुपया। हुण देखो वैल्यू एडड का मतलब मैं की लिखा सी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हुण आपां 3 मैथड है ना नैशनल इनकम कड्ढण दे, 3 मैथड किहड़े ने वैल्यू एडड मैथड, एक है वैल्यू एडड मैथड है, एक है अपना इनकम मैथड, तीसरा है अपना एक्सपेंडिचर मैथड। अज आप करना वैल्यू एडड मैथड। हुण देखो वैल्यू एडड मैथड दे राही जो आप नैशनल इनकम निकालनी है तो फार्मूला की हुंदा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसी भी चीज़ की जिन्नी वैल्यू है उनदे विचों माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ एडड मैथड के जो तुहानूं पेपर दे क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू एडड मैथड के थ्रू नैशनल इनकम कैलकुलेट करो तो आप फार्मूला की लगावांगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आ देखो वैल्यू एडड में ही कड्ढिया सी, वैल्यू एडड किवें कड्ढी सीगी वैल्यू ऑफ आउटपुट इहदे विचों माइनस करता इंटरमीडिएट कंजम्पशन नूं 500, वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 सी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नूं माइनस करता 500 नूं 200, 1000 माइनस 700 300 आ गया सी, तिन्नां नूं ऐड करता। ये है अपनी असल दे विच नैशनल इनकम दे जिहड़ी ऐड होएगी, ये अपनी बनेगी। ठीक है, हुण समझ आई। हुण आपां तुहानूं मैं तरीका दस दी सारा, हुण फार्मूला करते हैं आपां, जाने कि हुण पता लगे ना वैल्यू एडड मैथड के थ्रू, ये तो सिर्फ समझाने वास्ते है तुहानूं। वैल्यू एडड मैथड थ्रू मैं आप नैशनल इनकम निकालने तो फार्मूला की लगेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट तुहानूं गिवन होएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुहानूं दसी होगी कितनी है, ये तो सिर्फ समझाने वास्ते मैं तुहानूं दसी एग्जाम्पल कि इस तरह हुंदा है कि आप जिन्नी किसी चीज़ की वैल्यू है जारी सारी किसी चीज़ की कितनी वैल्यू होगी 500 700 तो 1000 2200 बन गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 1200, 2200 के विचों 1200 माइनस करता 1000 आ गया। ये तुहानूं 1000 बना के भी दिखाता कि नहीं आता, ये तुहानूं सिर्फ समझा हुण तुहानूं समझ आ गई एग्जाम्पल के थ्रू तां ही मैं तुहानूं समझाया है। आ देखो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी अपनी 2200 गिवन होएगी पेपर दे विच, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपनी कितनी आई है 1200, दोवां नूं माइनस करता कितना आ गया 1000।
ये तुहाडी वैल्यू एडड मैथड थ्रू आ गया। ठीक है, ये नैशनल इनकम नहीं आई हजे, हजे मैं तुहानूं दसदी हाँ। हुण तुहानूं मैं सारा क्लीयर करदी हाँ। हाँ जी, ये हुण तुहानूं सारा समझाउण वास्ते सी। हुण मैं प्रॉपर फार्मूला लिखदी हाँ, वैल्यू एडड मैथड, इहदे थ्रू आपां नैशनल इनकम निकालनी है जी। तो फार्मूला की लगेगा तुहाडा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दोगे इहदे विचों तुसीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बस सिंपल नैशनल इनकम का फॉर्म। ठीक है, पर जो तुसीं वैल्यू एडड मैथड लगाने हो तो इहदे राही तुहानूं की निकल आऊगा, GDP-MP की निकलूगी तुहानूं, GDP-MP। जो तुसीं आ चीज़ लगाओ ना वैल्यू एडड मैथड, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट विचों माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो अपने कोल की आ जूगी GDP-MP। लेकिन नैशनल इनकम निकालने लिए आप नैशनल इनकम का मतलब की होंदा, तुहानूं दस्सिया सी NNP-FC। नैशनल इनकम का मतलब की होंदा है NNP-FC। GDP-MP तो निकाल ली, उस तो बाद NNP ये चीज़ किवें निकालनी है, ये तुहानूं मैं लास्ट वीडियो में सारा समझाया हुआ है। आप मैं तुहानूं कह सकदा भी GDP-MP तो NNP-FC जाना तो की कुछ करना है। हुण GDP-MP कई बार गिवन नहीं होंदी, जे GDP-MP तुहानूं गिवन नहीं हैगी तो तुसीं आ फार्मूला लगा दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GDP-MP आ जाएगी, उस तो बाद इत्थे तुसीं पहुँच जाओगे। इत्थे तुसीं किवें पहुँचोगे, GDP-MP तो तुसीं पहुँचना है NNP-FC। किवें पहुँचोगे, ग्रोस तो नैट जाना है, डेप्रीसीएशन की कर दोगे माइनस। ठीक है, GDP-MP के डेप्रीसीएशन की कर दोगे माइनस, गिवन होएगा। डोमैसटिक तो नैशनल जाना है, नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कर दोगे प्लस, PP सेम होंगे, मार्केट प्राइस तो फैक्टर इनकम जाना है तो की करोगे माइनस कर दोगे नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस। नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस की कर दोगे माइनस कर दोगे, तुहाडे कोल की आ जाऊगी नैट नैशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, यानी कि तुहाडे कोल की आ जाऊगी नैशनल इनकम। समझ गए कि हुण प्रोडक्ट मैथड दे राही नैशनल इनकम किवें निकालनी है। पहला तुसीं GDP-MP निकाल लोगे, वो किवें निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे विचों इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कर दोगे माइनस, वैल्यू एडड आ जाएगी, यानी कि असीं किन्नी वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट दे विच। ठीक है, उस तो बाद फिर की है, उस तो बाद तुहानूं नैशनल इनकम तक तो पहुँचना आंदा ही है। NNP-FC तक तुहानूं लास्ट 2 वीडियो समझाए हुए है कि नैशनल इनकम तक आपां किवें पहुँचना है। चलो ये तो हो गया तुहाडा। ठीक है, हुण मैं तुहानूं सिंपल फार्मूला दसदा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं हुंदी, नहीं गिवन हुंदी तो वो तुसीं किवें निकाल लोगे। जे वैल्यू ऑफ आउटपुट तुहानूं गिवन नहीं हैगी तो वो किवें निकाल लोगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। जे तुहानूं वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दित्ती तो तुसीं अपना न्यूमेरिकल देखना है, सम दिता होएगा देखना है सॉरी, तुहानूं गिवन होएगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिता है फिर तो अच्छी गल है, जे नहीं दिता तो तुहानूं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन होएगा। सेल दे विच चेंज इन स्टॉक नूं प्लस कर दियो, वैल्यू ऑफ आउटपुट तुहाडे कोल आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक जे गिवन है तो ठीक है, जे चेंज इन स्टॉक तुहानूं नहीं गिवन तो कोई टेंशन नहीं लैनी। ठीक है, चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो तुसीं टेंशन नहीं लैनी, तुहानूं गिवन होएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये गिवन होएगा। तो तुसीं क्लोजिंग स्टॉक दे विचों ओपनिंग स्टॉक नूं माइनस कर देना है, तुहाडे कोल आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, फिर उन्होंने सेल दे विच की है प्लस कर देना है। क्लीयर, हुण देखो क्यों वैल्यू ऑफ आउटपुट दे विच देखो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड हुंदा है। तुसीं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हो, जिहड़ी चीज़ सेल होगी, सपोज तुहाडे कोल 10 टेबल सी, उहदे विचों 7 तो सेल हो गए, जिहड़े 3 बच गए वो किधर जाणगे। आप नैशनल इनकम ऐड तो लगाना ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई आप सर्विस दी है, नैशनल इनकम तो ऐड तो लगाना ना, वो होंगे चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उन्होंने दोनों माइनस करना, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक के विचों ओपनिंग स्टॉक नूं की है माइनस करना है, तो तुहाडे कोल की आ जाऊगा चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, भी तुहाडे कोल कितना स्टॉक बच गया। ठीक है, 10 दे विचों की सीगे 3 बच गए, 3 आ बच गए 10। ठीक है, 3 बच गए, सेल 7 हो गए, तो बच किन्ने गए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक निकालोगे 3 बच गए, 10 तुहाडे पूरे हो गए। ठीक है, ये समझाने वास्ते है कि जिहड़ी चीज़ अपनी जी चीज़ सेल होगी तुहाडे की है 7 सेल हो गए, 3 तुहाडे कोल बच गए, चेंज इन स्टॉक दे विच आ जाऊगा कि जिन्ने इहदा मतलब होंदा चेंज इन स्टॉक तुहाडे कोल की स्टॉक बच गया। क्लीयर, हुण की हुंदा है कि कई बार सेल गिवन हुंदी है, कई बार नहीं, मोस्टली गिवन ही हुंदी है। बहुत रेयर होंदा है कि तुहानूं सेल गिवन ना होवे। जे तुहानूं सेल गिवन नहीं होएगी, मैं तुहानूं एक बार दस दिंदी हां, वैसे तो हमेशा गिवन ही होंदी है सेल, पर तुहानूं पता होना चाहिए। उनकी जगह तो तुहानूं फिर गिवन होएगा डोमैसटिक सेल
जाने कि सेल का मतलब की होंगे आप नैशनल इनकम निकाल रहे हैं जो तो नहीं सेल आप इंडिया के ही सेल की है आप इंडिया के भी सेल करते हैं आप इंडिया तो बाहर भी सेल करते हैं जोड़ा ये सेल है इस सेल के सारा कुछ आ गया जी इनकम अपने इंडिया के सेल हुई है वो इनकम कहनी सोची जी भी गुड आउटपुट है जो कोई भी गुड्स है जी अपने देश के सेल हुई है जी विदेशों के सेल हुई है दोवों का प्लस है सेल पर जो तुम ये गिवन नहीं हैगी कई बार गिवन होंगे डोमैसटिक सेल तो फिर उस ऐड कर देना एक्सपोर्ट यानी कि जड़ी चीज़ अपने देश के सेल हुई है प्लस जड़ी असी विदेशों के सेल की है दोनों ऐड कर दोगे तो आ जाऊगी सेल वैसे गिवन होंगी है नहीं गिवन तो डोमैसटिक सेल प्लस एक्सपोर्ट जी एक्सपोर्ट की है तो जी डोमैसटिक सेल है दोनों प्लस कर दोगे आ जाऊगा सेल सेल चेंज इन स्टॉक में ऐड कर देना है गिवन है तो ठीक है नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर दिओ आ जाएगा तुहाडे कोल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी क्लीयर बस हुण कई बार की हुंदा इंटरमीडिएट कंजम्पशन मोस्टली गिवन हुंदी है जे नहीं गिवन तो तुसीं इनू किवें निकाल लोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशनस जे तो गिवन है तो बहुत अच्छी गल है पर जेकर नहीं गिवन तो की होएगा हुण रॉ मटीरियल है ना आप रॉ मटीरियल की है अपने देश च भी लै सकते हैं जो तो नहीं आप रॉ मटीरियल विदेशों तो भी तो मंगवाने आप कच्चा माल आप अपने देश च भी लैने तो आप विदेशों तो भी मंगवाने यानी कि डोमैसटिक कंजम्पशन जां तां आपां कच्चा माल अपने देश च लै रहे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जां आपां कित्थों लै रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों तो लै रहे हैं ठीक है तो इहदे नाल की होएगा जो दोवां नूं प्लस कर दोगे तुहाडे कोल की आ जाऊगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन बस फॉर्मूले याद कर लो सारा कुछ गिवन होएगा एक बार तुहानूं फॉर्मूले याद आ गए ये फॉर्मूले याद करने का सौखा तरीका है बहुत सम ने बुक दे विच सारे सम करो जो सम कर लोगे तो तुहानूं उंज टिप्स ते हो जाने सारे 5-6 सम भी कढ ली तो तुम आ जाएगी पर तुसी कदे भी बैक एक्सरसाइज पहले सोल्व नहीं करनी जो तुसी बैक एक्सरसाइज सोल्व करनी शुरू करती फिर तुसी शायद उलझ जाओगे तुसी पहला की सोल्व करनी है जिन्ने भी तेरे सोल्वर सम ने सारे ओहो करने हैं ये जरूर करने हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है करना कुछ कोई लर्न नहीं करना सिंपल ये करना है सपोज ऐसे ही क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन जो थ्योरी आ जाती है तो तुसी सारा फॉर्मूला एवं की सोल्व करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखोगे फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में सोल्व करोगे कि होंगी है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक एवं टेबल बनाओगे फिर सारे टेबल की करोगे एक्सप्लेनेशन करोगे ठीक है सेल की आप अपने देश भी करते हैं विदेशों भी करते हैं तो डोमैसटिक सेल प्लस एक्सपोर्ट चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं होंगे मोस्टली वो अपनों निकालना ही पऊगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ठीक है बच्चे उल्ट कर देंगे ओपनिंग के क्लोजिंग में माइनस कर देंगे ये गलती नहीं करनी उस तो बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन डोमैसटिक सेल क्योंकि आप कंजम्पशन है आप रॉ मटीरियल मंगवा रहे हैं अपने देश तो भी लै सकते हैं विदेशों तो भी मंगवा सकते हैं तो इंपोर्ट में कर देना प्लस बस जो तुम ये फॉर्मूला लगा लोगे एवं सारा कुछ प्लस माइनस कर दोगे तो तुम कर दोगे वैल्यू एडेड मैथड यानी कि GDP MP आ जाएगी उनके तो बाद तुम नैशनल इनकम पर जाना है नैशनल इनकम का मतलब होंगे NNPFC ठीक है वो तुम दस्से होया कि किवें पहुँचना उत्थे ठीक है तां तुहानूं पहलां वो वीडियोज़ करवाइयां सी तां जो तुहानूं इत्थों उलझो ना क्लीयर हाँ जी हुण आपां एक स्टेटमेंट लैके सम नूं सोल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है इनकी स्टेटमेंट किवें आंदी है पेपर दे विच सिंपल स्टेटमेंट आंदी है सेल गिवन है ठीक है 500,000 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 800 ओपनिंग स्टॉक गिवन है 200 इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 800 डेप्रिसिएशन गिवन है 400 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है 200 तुहानूं क्या गया है कि नैशनल इनकम निकालो तुहानूं क्या है कैलकुलेट करने लई नैशनल इनकम ठीक है पर जो हम अपनू तुहानूं स्टेटमेंट तो क्लीयर हो रहा है ना कि सेल ओपनिंग स्टॉक डेप्रीसीएशन गिवन है ना तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो कड़ा एक इहदे विच ऐड होंदा सारा कुछ वैल्यू एडेड मैथड दे विच पहला आप वैल्यू एडेड मैथड लगावांगे वैल्यू एडेड मैथड दे नाल अपने कोल की आ जाऊगी GDP MP आ जाएगी उस तो बाद आप नैशनल इनकम निकाल लांगे नैशनल इनकम का मतलब की होंदा है NNPFC निकालना है लेकिन आपनूं कुछ भी गिवन नहीं हैगा लेकिन आपां नूं पता है कि जेकर असीं ग्रोस वैल्यू एडेड मैथड लगावांगे तो साडे कोल GDP MP आ जाएगी जे अपने कोल GDP MP आ गई तो आप नैशनल इनकम तो निकाल ही लैनी है चलो हुण जदों आप वैल्यू एडेड मैथड लगाया वैल्यू एडेड मैथड लगा रहे हैं आप वैल्यू एडेड मैथड ठीक है जो असीं ये मैथड लगाया ये मैथड का फॉर्मूला की सी सब तो पहला फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला सी तुहाडा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यही फॉर्मूला सीगा वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन पर तुहानूं पता जे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो तुसी की करना है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक यही फॉर्मूला से ना तुम दसिया सारा चेंज सेल गिवन है ठीक है चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला की सीगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यही से ना फॉर्मूला चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला की सी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक
हाँ जी, तुहानूं पता ही सीगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो आपनूं गिवन हैगा ही है। ठीक है, सेल आपनूं किवें आपां चेंज इन स्टॉक निकाल लिए पहला, चेंज इन स्टॉक पता सिस्टमैटिकली चलना वै, विच वो नहीं करना गा भी आप इत्थे सारा कुछ सेल करते इत्थे क्लोजिंग प्लस माइनस कर दो, फिर तेरा गलत हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक निकाल लो, तुहानूं पता ही है फार्मूला की है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितनी गिवन है 800, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितनी गिवन है 200, कितना आ गया 600। हुण सेल ते प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट कढ लो, हुण इत्थे लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, एवें प्रॉपर फार्मूला लिख के करना है सारा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कढण दा फार्मूला की है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आप निकाल लिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। सेल कितनी गिवन है 5000 प्लस चेंज इन स्टॉक आप कितना कढ़िया वै 600, सॉरी 600, हाँ ठीक है, कितना आ गया तुहाडा ये हुण 5600 आ गया ना। चेंज वैल्यू ऑफ आउटपुट तुहाडी कितनी आ गई हुण 5600। हुण फार्मूला की है वैल्यू एडेड मैथड दे कढण दा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट तुहाडी कितनी आ गई 5600 आ गई, 5600 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुहाडी कितनी आई है, कितनी गिवन है 800 गिवन है, 800 गिवन है तो माइनस कर दो, 56 दे विचों 800 कितने आ जाएंगे 4800, तुहाडी आ गई वैल्यू एडेड मैथड निकली 4800। ये तुहाडी की आ गई GDP-MP आ गई, की आ गई GDP-MP आ गई। समझ गए? दोबारा दसा एक बारी देखो, वैल्यू एडेड मैथड दे निकाल रहे हैं, फार्मूला की है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन पर सानू पता है किसी किवें निकालनी है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन पर सानू फार्मूला पता है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कर लिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक सानू पता है 800 है, ओपनिंग स्टॉक सानू पता है 200 है, 600 आ गई। वैल्यू ऑफ आउटपुट कढ़न दा सानू फार्मूला पता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल गिवन है 5000 प्लस चेंज इन स्टॉक अपने पता लग गया 600 है, प्लस करते 5600। वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लग गई। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 5600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ 4800, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ GDP-MP ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GDP-MP ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, GDP-MP ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ग्रोस तो सॉरी ग्रोस तो नैशनल जाना है, आप ग्रोस तो जो नैशनल जाना नैट जाना, सॉरी ग्रोस तो जो नैट जाना है तो डेप्रीसीएशन की करनी है माइनस, पहले एवं सारा फार्मूला लिख लो। ठीक है, उस तो बाद डोमैसटिक तो नैशनल जाना है तो नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की कर दो प्लस, एवं फार्मूला भी याद करने की लोड़ नहीं, एवं लिख लो। पीपी तो सेम हो गया। उस तो बाद मार्केट प्राइस तो कित्थे जाना है तुसी फैक्टर कोस्ट। जो मार्केट प्राइस तो फैक्टर कोस्ट जाना होंगे तो उदों आप माइनस कर देंगे नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस, माइनस करांगे ना, क्योंकि मार्केट तो जिथे जाना है फैक्टर कोस्ट जाना है तो नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस की कर दो माइनस कर दो। फार्मूला बन गया सारा, कोई याद करने की लोड़ नहीं पई, कोई ज़्यादा मत्था नहीं मारिया है ना, बस एवं रूल्स के अकॉर्डिंग करूँगी तो बहुत ईजी है नैशनल इनकम। इस तरह लिख लिया भी जो चीज़ कैलकुलेट करनी इधरले पासे लिख लो, जो चीज़ अपने को हैगी है वो लैफ्ट राइट साइड पर लिख लो। GDP-MP पता वै ये चीज़ असी कैलकुलेट करनी है, फिर सिंपल एवं एरो पा के कर लो पेपर, तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं कट्टे जाएंगे। ग्रोस तो नैट जाना है, डेप्रीसीएशन माइनस करनी है। डोमैसटिक तो नैशनल जाना है, नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना है। पीपी सेम है, मार्केट प्राइस तो फैक्टर कोस्ट जाना है, नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस की करने माइनस। इहदे नाल की होएगा कि तुहाडे तो कोई चीज़ स्किप नहीं होएगी। अदरवाइज जो आप फार्मूला लर्न कर लेंगे फिर आप उल्ट पुलट लिख दिंने हैं, नैट इनडायरैक्ट टैक्स पहला लिख लेंगे, डेप्रीसीएशन बाद में लिख लेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं हैगी, कोई मार्क्स नहीं कट्टे जाएंगे। पर इहदे नाल की हुंदा वै कि आपां की हुंदा है कि कोई चीज़ स्किप हो जाती है, इहदे नाल तुहाडे स्किप होने के चांस नहीं देंगे। कोई भी चीज़ जो तुसीं सिस्टमैटिकली करोगे प्रॉपर प्रोसैस दे विच करोगे तो कोई चीज़ स्किप नहीं होएगी। हुण की होएगा बस वैल्यू सब कुछ गिवन है, बस भर दो, फार्मूला लिखे हुए है। GDP-MP अपनी कितनी आई सी 4800 आई सी, 4800 लिख दो, माइनस आएगा डेप्रीसीएशन कितना गिवन है अपनों, डेप्रीसीएशन लभो कित्थे है, डेप्रीसीएशन है अपने को 400, 400 भर दो प्लस नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी है 200 गिवन है। सारा कुछ गिवन होंगे, बस फार्मूला याद होना चाहिए तो उन्होंने करन दा वे पता होना चाहिए। वे मैं तुहानूं दस दूँगी, फार्मूला तुसी समझना है, तुसी याद करना है। नहीं समझ आ रही इस वे नाल तां मैनूं मैसेज कर दो, मैं किसी होर वे नाल समझा दूँगी, पर समझ आ चुकी सबनूं। ठीक है, उस तो बाद आपनूं की चाहिए वै नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस, ये भी गिवन है। नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस किन्ने ने 300 रुपया, माइनस करना है बस। उस तो बाद प्लस वाली चीज़ा पहला कर लो, दूजी चीज़ा बाद कर लो। 4800 तो 200 दोनों प्लस वाले ने 5000, 400 तो 300 700, माइनस माइनस प्लस होंगे तो पता ही होएगा।
500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਨੂੰ ਮਾਈਨस ਕੀਤਾ 4300, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਹੈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ, ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਗੇ, GDP MP ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ GDP MP ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 6 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਣਾ ਵੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਊਟ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ 1-2 ਸਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।